Very good morning, everyone. Very good morning. Yeah, so today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 5, differentiation. Okay, what's the name of the chapter? Differentiation. The last chapter that we did was limit. Now in this chapter, little bit connected to limit, and there are many new concepts also that we will learn in differentiation. Okay, so what is differentiation? What we are going to learn in differentiation? When we do the work of removing a derivative, the work of removing a derivative is called differentiation. Okay, differentiation is basically used to what to do to remove a derivative. We have different methods which we will learn in this chapter. The first method that we are going to learn is the definition method. Which method? Definition method. And in definition method, the definition method is looks something like that. The function will be given to you. Now, if the function you have learned in limit chapter, function is usually written in f, and in bracket you have x and the value of something. May suppose if the function fx is x square plus 3, say function x is root of x, say function x is x cube. So these are what? These are the function. Function will be given to you. Okay. So in this chapter, when we have learned in limit, the functions were given to you and you have to solve that function. Now when you are finding the derivative in this chapter, when you are finding derivative, so first of all, this function may be given to you. The question may be in the function form, that is fx form, or it may be in the y form. You might have seen many questions where it is written y 2x plus 9, y is equals to 9 plus 5x. So these are the question in which form? Y form, and we are searching the value of y in respect of what? In respect of x. So question might be given to you either in the function form or y form. These two forms question might be given to you. And when you are searching the derivative of this function form, then what you will write? You will write f dash x. When you are finding the derivative of this function, what you will write? You will write f dash x, meaning you are finding the derivative, you are finding the differentiation of this function. And when question is given to you in the y form and you are finding the derivative of this question, then question will be written as dy by dx. dy by dx means differentiation of y. Differentiation किसका? Differentiation of y in respect of x. y का question है, आंसर किससे हेल्प कर लेके ढूंढ रहे हैं? x से. So differentiation of y in respect of x. So this is what we are going to learn, how to find which method to use. Okay. So first of all, let's see the function form. I told you that if the function is given to you in fx form and you have to find the differentiation, you will find it f dash x. Now, what is the definition method? We are going to learn the definition method, and definition method, when we have to find the first order differentiation, this is fx, the definition method will be limit h tends to 0 and function x plus h minus function of x, and it will be divided by h. So this is what? This is definition method. Here the limit will be h tends to 0. You have learned many sum in the limit chapter where we have been given the limit and the value of x was given to you, and what you used to do, you have to solve the question, lastly put the value of x. Similarly here also what we have given, limit is given to you, but here the value of h is given and h will remain 0 every time. It will not change. Okay, and the function will be x plus h minus function of x, and will be divided by what? h. So whenever it is given to you in the question that you have to solve by the definition method, तो definition method solve करने के लिए अगर बोला है तो आप लोग कौन सा function लिखोगे? f dash x. f dash x is the first order differentiation, first order derivative. वो कैसे find करेंगे? Limit h tends to 0, function x plus h minus function of x will be divided by what? Will be divided by h. We will solve few examples so that you can understand how exactly it works.
Now the function is given to you in this question is fx is given to you और fx का आंसर क्या है x क्यूब, और आपको ये सॉल्व करना है कौन से मेथड से, डेफिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है. तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप you have to solve this by definition method. First of all, let's write the definition method. What is the definition method? F dash x is equals to limit h tends to 0 function x plus h minus function of fx divided by h. चलो अब आप लोग देख रहे हो कि fx तो आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये जो x प्लस h है वो आपके पास नहीं है, तो आपको वो x प्लस h फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप उसको यहाँ पर रिप्लेस करोगे और वो फंक्शन वाला साइन को हटा देंगे. चलो अगर fx अगर x क्यूब है तो x के जगह पे अगर x प्लस h डालेंगे, x की जगह पे x प्लस h डालेंगे तो यहाँ पे भी x क्यूब की जगह पे x प्लस h द होल क्यूब डालना पड़ेगा. यस, x के जगह पे हमने अगर x प्लस h डाला तो x क्यूब की जगह पे भी x प्लस h द होल क्यूब डालना पड़ेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब आपने ये x प्लस h द होल क्यूब डाला तो कैन यू सी ये कैसा बन गया? a प्लस b द होल क्यूब वाला फॉर्म बन गया. You have already learned in 9th standard, 10th standard, a plus b the whole square का फॉर्मूला क्या है, a plus b the whole cube का फॉर्मूला क्या है. You've already learned, right? तो a plus b the whole cube का फॉर्मूला क्या होता है? a cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b क्यूब. तो अब हमें किसका सॉल्व करना है? x प्लस h द होल क्यूब का. तो x प्लस h द होल क्यूब क्या आएगा? x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर h प्लस 3 x h स्क्वायर प्लस h क्यूब. हमने किसको सॉल्व किया? x प्लस h द होल क्यूब को हमने सॉल्व कर दिया और इसका हमने a प्लस b द होल क्यूब का फॉर्मूला डाल के उसको हमने सॉल्व कर दिया. अब ये वाला फंक्शन जो हमारा था उसका आंसर हमें मिल गया. ये fx का आंसर ऑलरेडी देके रखा है. क्या देके रखा है? x क्यूब. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट? चलो विल ब्रिंग दिस ओवर हियर. फंक्शन x प्लस h, फंक्शन x प्लस h का आंसर हम लोग को मिला है x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर h प्लस 3 x h स्क्वायर प्लस h क्यूब. ये आंसर आपको मिला है, राइट? बीच में साइन किसकी है? माइनस की. और इस साइड fx कौन है? x क्यूब है और नीचे कौन आएगा? h आएगा. Is it clear to everyone? Now you can clearly see here x cube is in plus and here x cube is in minus. दोनों कट जाएगा. Yes, बचा कौन? 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब बचा और नीचे कौन बचा? h बचा. अगर आपको इस h को काटना है तो can you see everywhere we have h. So we can take h common. Let's take h common. What is left? We are left with 3x स्क्वायर प्लस 3x और एक h बाकी रहेगा क्योंकि h स्क्वायर था, एक h बाहर आ गया, एक h बाकी रहेगा, प्लस h क्यूब है, एक बाहर आ गया, दो बाकी रहेंगे तो h का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे कौन बचेगा? h को मैंने काट दिया. अब जो भी हमारे पास बचा है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? h की वैल्यू डाल देनी पड़ेगी और h की वैल्यू क्या है? It will remain 0 every time. Okay, so we have to write the value 3x square plus 3 into x into 0 and plus 0 का स्क्वायर. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा. 0 को कितना भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, रेज़ टू 4 करो, रेज़ टू 1000 करो, वो 0 ही रहेगा. तो what will be there? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. क्या बचा? तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर. कैसे लिखेंगे? f डैश x लिखेंगे और आंसर क्या आया? 3x स्क्वायर. चलो, when we were solving this question, the same sum can also be solved by one more method. Let's see which method it can be solved. जब हमने इसको यहाँ पे डाला तो फंक्शन x प्लस h क्या था? x प्लस h द होल क्यूब, राइट? तो ये है x प्लस h द होल क्यूब और यहाँ पे है हमारा x क्यूब और नीचे है हमारा h. दिस इज अ और मेथड. यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो. When it is x प्लस h द होल क्यूब, आप लोग देख रहे हो दोनों ऊपर का रेस कैसा है? सेम है. और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा था? रेज सेम होना चाहिए, x सेम होना चाहिए, a सेम होना चाहिए और बीच में माइनस का साइन भी
सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस एच द होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब क्यूब सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है? हाँ, तो हमें x मिसिंग है, तो हमें x को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, x को माइनस करना पड़ेगा। मानी हमने क्या किया? व्हाट डिड वी डू? हमने फॉर्म चेंज किया, पर उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो whenever you do any changes, you have to understand the form should change, but the meaning of the question should not change. अगर आपने x को प्लस किया और x को माइनस किया, तो वो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा ना, प्लस माइनस में वो हट ही जाएगा, राइट? तो हमने यहाँ पे x को प्लस कर दिया और x को, अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ऊपर का सेम, इसका ये साइड सेम, ये साइड हम साइन भी दोनों माइनस माइनस, राइट? कैसा फॉर्म बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर क्या होता है? n into a raised to n minus 1. What is n in our case? What is a in our case? X. And a minus 3 minus 1 will be 2. So answer is same by both the methods. But if you can solve it by standard form, तो ही उसे solve करना है, और अगर नहीं कर सकते, standard form नहीं use होगा, तो फिर we can solve the normal method that we used to do in the limit chapter. Are you understanding? चलो, दोनों मेथड से हो सकता है ये वाला सम, तो हमने we have tried both the methods. Whichever one of the method you want to use, you can use it in the exam. Okay? आंसर दोनों का सेम आएगा। ये आंसर किसका आया? क्या चीज का आया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग डेरिवेटिव ढूंढ रहे थे ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग ने ढूंढ लिया। कौन से मेथड से? बाय डेफिनेशन मेथड। विच मेथड वी डिड वी यूज? We use definition method. Let's try one more example by using same definition method. Definition method करने के लिए सबसे पहले definition लिखते हैं। f dash x का लिमिट क्या आएगा? h tends to 0। फंक्शन क्या आएगा? x plus h माइनस फंक्शन ऑफ x। डिवाइड किससे होगा? h से होगा। ओके, यहाँ पे फंक्शन fx is equals to रूट ऑफ x। तो हमें किसका ढूंढना है? fx तो मिल गया, लेकिन x प्लस एच का भी ढूंढना है, राइट? तो हमें फंक्शन x प्लस एच का ढूंढना है, तो व्हाट इट विल बी? रूट x प्लस एच। यस और नो? रूट x प्लस एच। अब इसको कहां डालेंगे? इस फंक्शन में डालते हैं। रूट x प्लस एच माइनस रूट x डिवाइड किससे हो रहा है? h से। डू यू रिमेंबर द सम दैट वी डिड इन लिमिट? जब रूट वाला सम होता है तो व्हाट डू वी डू? वी राइट द सेम रूट, वी चेंज द साइन। व्हाट वी विल डू? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस एच, और यहाँ पे रूट x से, लेकिन ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। डू यू रिमेंबर दिस? ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, और ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे तो ही वो कट के 1 बन जाएगा। अगेन वी डिड द सेम थिंग, फॉर्म चेंज किया लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? Now this is x plus h and here also x plus h, मानी वो x plus h का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे है रूट x प्लस h का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कौन सी साइन आएगी? माइनस। यहाँ पे रूट x, यहाँ पे रूट x, क्या आएगा? रूट x का स्क्वायर। चलो, नीचे कौन बचेगा? नीचे तो पूरा बचेगा ना, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो क्या बचेगा? h बचेगा, रूट x प्लस h बचेगा, प्लस रूट x बचेगा। ठीक है, मुझे सिंपल सा बताओ, अगर रूट भी है और स्क्वायर भी है तो क्या रूट और स्क्वायर हट जाएगा? यस, हट जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट बाय x प्लस एच माइनस x, और नीचे क्या आएगा? h आएगा, रूट x प्लस एच आएगा, प्लस रूट x आएगा। नाउ कैन यू सी दैट माइनस एंड प्लस विल गेट कट? Here minus and plus will get cut. Here h and h will also get cut. What ऊपर क्या लेफ्ट है? कुछ नहीं लेफ्ट है ना, तो क्या लिखेंगे? 1, और नीचे क्या लिखेंगे? x प्लस एच प्लस रूट x। अब क्या कर सकते हैं? अब आगे और कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? h की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे बचेगा रूट x प्लस रूट x, दैट इज 1 by 2 root x. Root x by root x, 1 by 2 root x. Understood? Now let's try. Can we do the same sum by standard form? Can we do the same sum by standard form? देखो, जब हम लोग ने लिखा था x प्लस एच, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? x प्लस एच रेज टू 1 by 2। यस, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x रेज टू 1 by 2?
यस तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे जो है, मेरा जो डेफिनेशन मेथड है वहां पे डाल के देखते हैं। यहाँ पे x प्लस एच रेज टू 1/2 एंड माइनस का साइन और x रेज टू 1/2 और नीचे कौन है, h है। कैन यू सी दोनों रेज सेम है, रेज क्या है 1/2 1/2। लेकिन अगर इसको हमें सेम बनाना है, इसको अगर हमें सेम बनाना है तो हमें x को प्लस करना पड़ेगा। अगर x को प्लस करो तो x को माइनस भी करना पड़ेगा, तो ही आपका मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो जब मैंने इसको x प्लस किया और x माइनस किया तब मैंने देखा कि ये कैसा फॉर्म बन रहा है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर क्या होता है, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। व्हाट इज n, 1/2। व्हाट इज a इज x, n/2 माइनस 1 माने क्या, 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x, यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम और 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 माने क्या, 1/2 x रेज टू माइनस 1/2। माइनस 1/2 माने क्या, जो रूट है वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर सिर्फ 1/2 होता तो रूट x हो जाता, लेकिन ये रूट माइनस 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। इज इट क्लियर? विच एवर मेथड यू कैन अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया तो ये करो। और ये वाला लिमिट में हमने बहुत बार किया तो वी इजीली नो कि अगर जब भी रूट वाला सम आता है सेम रूट से मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है सम को। लास्ट में जहां पे सिंप्लीफाई नहीं होगा वहां पे क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, okay fine, we'll see one last example of standard form. Let's see. First step that you have to do whenever it is asked to you to solve it by definition method, first step that you have to do is what, write the formula. क्या दिया है, f dash x is equals to limit h tends to 0 function x plus h minus function of x will be divided by what, h। माने आपको क्या चाहिए, एक तो fx चाहिए और दूसरा चाहिए fx प्लस h। fx आपको दिया है, आपको x प्लस h ढूंढना है। अगर x के जगह पे आपने x प्लस h डाला तो बाजू में भी x के जगह पे x प्लस h डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या डालोगे 1/x प्लस h। अब इसको पुट कहाँ करेंगे, फॉर्मूला में, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस यहाँ पे आएगा 1/x, नीचे कौन आएगा h। Whenever the sign in the middle is minus or plus, what do you take? LCM लेना पड़ेगा। चलो LCM में कौन आएगा, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं 1/2 है 1/6 है, जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग LCM में लेते हैं। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमें दोनों को लेना पड़ेगा LCM में, राइट। तो वी हैव टू टेक x ऑल्सो एंड वी हैव टू टेक x प्लस h ऑल्सो। यहाँ पे x प्लस h ऑलरेडी है, ऊपर कौन आएगा, सिर्फ x आएगा, बाजू बाहर साइन कौन सी है, माइनस की। अब यहाँ पे x ऑलरेडी है लेकिन कौन बाकी है, x प्लस h बाकी है। तो हमारा ये जो है ना एलसीएम वाला फॉर्म वो सॉल्व हो गया, लेकिन नीचे ये कौन बाकी रह गया, h बाकी रहेगा, उसको भी तो लिखना पड़ेगा, राइट। चलो अब देखते हैं इसको, ऊपर वाले को। ऊपर है x माइनस x और अगर यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये माइनस h हो जाएगा और नीचे कौन बचेगा, x बचेगा और x प्लस h बचेगा। नाउ कैन यू सी दिस h इज स्टिल लेफ्ट, व्हाट वी कैन डू, इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं। अगर ये कुछ नहीं है माने h/1 है, अगर एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, h/1 1/h हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/h। नाउ कैन यू सी ये जो प्लस x है ये जो माइनस x है वो दोनों कट गया, कट गया। यहाँ पे h है, यहाँ पे भी h है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन ये माइनस h है ये प्लस h है, तो बचेगा कौन, -1 बचेगा और नीचे कौन बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे x प्लस h बचेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हम लोग नहीं कर सकते तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट द वैल्यू ऑफ h एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, द वैल्यू ऑफ h इज 0। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू -1 x इंटू x plus 0 since the value of h is equals to 0. तो x plus 0 is x only, right? तो -1 divided by x का square, x into x is what, x square
right? So minus 1 will be divided by x square. Is it clear to everyone? This is what, this we have solved definition method. Definition method से हमने derivative ढूंढा. Definition method क्या है? It is limit h tends to 0. Function क्या है? x plus h minus f of x will be divided by what? h. आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हो रहा है सम्स डेफिनेशन मेथड में तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा है तो व्हाटएवर वी हैव यूज्ड द लॉजिक इन द लिमिट चैप्टर, द सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड हियर आल्सो एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, so that's all for today. Thank you so much.